वॉइस आ रही है। हाँ। Ranshidi, I think it is again unmuted. No voice. Now audible. She found she started after this, she, along with her husband, continued to influence young girls and another school in was afraid because of the fear of attacks from Orthodox family. As a result, they were thrown out of their Savitri Bai and Jyoti set the stage for their education. Although uncertain, they took initiatives to reduce malnutrition in children. She inspired young girls to learn, and by the year 1850, Savitri Bai three schools with around 150 students. For her, education was the revolution of mind and not just alphabets. On 16th November 1852, Phule family was honored by the British government for their works in the field of education, and Savitri Bai was declared as the best teacher. Savitribai Phule started Mahila Seva Mandal in 1852, which worked for raising women's consciousness about their human rights, the dignity of life, and other social issues. She went on to organize a successful Bible strike in Mumbai and Pune against the prevailing practice of shaving of women's hair. In the year 1853, Savitribai Phule started India's first infanticide prohibition. In 1854, she is the first Indian woman to spoil crop noodles. Savitribai Phule was the mother of modern poetry, stressing the necessity of English and education through her poems. Kavya Phule was the first collection of poems that was published in the year 1854. In the year 1855, a night school for agriculturists and laborers was started by Phule Kapil. There were many downtrodden people who had no options to go to regular schools, but to themselves available only at night. So to cater their needs, Phule Kapil started their night school. Savitribai Phule edited and published Jyoti Rao Phule's speeches on 25th of December 1856. It contains four speeches by Jyoti Rao Phule. Phule Kapil started orphanage homes for the pregnant for youth in 1862 so that they can give birth to their children and live without the fear of the society. At a time when even the shadow of untouchables was considered impure, when the people were unwilling to offer water to thirsty untouchables, Savitribai Phule and Mahatma Jyotiba Phule opened the well in their house for the use of untouchables. It was a challenge thrown
their mindset towards untouchables. But unfortunately, the sick mindset of so-called upper caste have not changed even after almost 200 years. Dalit, untouchables still strive for water rights. When Jyotiba Phule established the Satyashodan Samaj, Savitribai became the head of the women's section, which included 90 female members. Moreover, she worked tirelessly as a school teacher for girls. After Jyotiba Phule's death, she was the chairperson of Satyashodan Samaj and carried his work with him. Savitribai Phule acted as a chairperson of Satyashodan Samaj conference at Saraswat in 1893. Its purpose was to liberate the Shudra and untouchable caste from exploitation and oppression. In 1874, Phule couple adopted the son of Kashibai, a Brahmin widow. When infanticide prohibition started with Savitribai Phule working as a prostitute, Savitribai did not remain as one who served the widows, but she went further in this regard. She adopted a child from a Brahmin widow, Kashibai, and thereby gave a message to the progressive people of the society. This adopted child was named Yashwantrao, who later became a doctor. During the 1876 to 1898 meetings, Savitribai Phule worked courageously with her husband and suggested many new ways to overcome the difficult time. They started distributing free food at many locations. Phule couple started 52 free food hospitals in Maharashtra. In July 1889, when Jyotiba Phule suffered a stroke and right side of the body was paralyzed, Savitribai nursed him night and day. Hence, he managed to recover and write again. During the drought in 1897, Savitribai Phule forced British government, that is ignoring the well-being of people, to start relief work. Savitribai and her adopted son Yashwant opened a clinic to treat those affected by a pollen plague when it appeared in the area around Nagasapara in 1897. Savitribai Phule personally took patients to the clinic during her son served them. While caring for the patients, she contracted the disease herself. She died from it on 10th March 1897 while serving a plague patient. Pune City Corporation and the memorial in the memory of Savitribai Phule in the year 1980. A century after the death, on 10th March 1998, a stamp was released by Indian Post in the honor of Savitribai Phule. In 2015, the University of Pune renamed itself to Savitribai Phule University in her honor. Through this small skit, we try to incorporate the entire life of Savitribai Phule, from her early life to her career and to the poetry she has written, and even after her death. She was a real idol lady who can enjoy our little skit and have learned a lot about this phenomenal personality. Thank you. Have a great day. It's done. It's done. बेटा सारी ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन इसी क्लास में होनी है, सो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए. देयर विल बी नो अदर टाइम. Group 3 has made a skit on child labor. It is a form of labor in which children are forced to work, which makes them unhappy. They are forced to miss their school. It affects them morally, physically, emotionally, and mentally. So let's see how Group 3 has depicted child labor. पानी पियो. महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करें? ये तो है. कल मैं गई मार्केट, वहाँ से देखो कुछ सब्जी लेके आई और कुछ सब्जियों में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि 200 रुपए नोट कहाँ चले गए. और काम वाली के भी तो ऐसे ही हैं, उनके भी तो खर्चे देखने हैं. क्या करूँ, ओवर
टाइम भी करके थक गया हूँ, फिर भी घर का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। पापा पापा पिज्जा खाना है। हाँ मम्मी, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी और बर्गर भी खाना है। पापा प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए ना पापा, बहुत दिन हो गए हैं। बाहर का रोज रोज खाना अच्छा नहीं होता, फिर कभी चलेंगे खाने। अभी मेरे पास बच्चे पैसे भी नहीं है और मम्मी भी सही कह रही है कि रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, फिर कभी चलेंगे पक्का। पापा नेक्स्ट वीक पक्का चलेंगे। प्लीज मम्मी प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है, बच्चे जिद कर रहे हैं, चलिए। दोनों बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। चलो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। अरे हुई नहीं अब तक तैयार? वैसे तो घूमने जाना है, खाने जाना है बाहर, तैयार तुम 2-2 घंटे नहीं होते हो। अरे बाबा हो गई तैयार। अरे वाह, क्या लग रही हो सच में। हाँ 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8। श्यामू, ओ श्यामू, कहाँ मर गया? काम पे ध्यान दिया कर, ये पढ़ाई लिखाई तेरे लिए नहीं है। जा देख कोई कस्टमर आया है। हाँ मेरी गेम जो यहाँ खराब हो गई है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। वेटर, श्यामू देख, कोई कस्टमर आया है, सिर्फ बैठा रहता है यहाँ पर। क्या लाऊं मेरे साथ? चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, समोसे लाऊं, ब्रेड पकौड़े लाऊं, क्या लाऊं? वैसे यहाँ कुछ है तो नहीं मेरे लेवल का। एक कप चाय ले लो। ठंडी या गरम? गरम। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई कैसा लड़का है, इतना महंगा सूट खराब कर दिया। हाँ यार, बात तो तुमने सही कही, ऐसे तो किसी को रखना ही नहीं चाहिए काम पर। मैनेजर 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 चलो, कैसे कैसे लोग रखते हैं आप? सर्व करा भी दिया मैडम जी। मेरा 3000 का ड्रेस खराब, पैसा कर दो। नो प्लीज, चल। कामचोर है मैडम जी, रहने दो, प्लीज मत करना। आप कहते हैं तो नहीं करते। आप बैठो, मैं आपको फोन कर देता हूँ। प्लीज वैसे ही वाह मम्मी पापा देखो, मैं वहाँ बैठेंगे। हाँ हाँ, जहाँ बैठना वहाँ बैठो। चलो, रेस्टोरेंट तो अच्छा है। हाँ रेस्टोरेंट तो अच्छा है, बैठो। उसके लिए तो जगह छोड़ दो, इधर हो जाओ। बेटा क्या लाऊं सर? चाय है, पानी है, कॉफी है, जूस है, समोसा है, चिली पोटैटो है, ये है, वो है, बनाना है, टिमका है और हाँ लिमका भी है। एक पिज्जा, एक बर्गर, 2 डोसा और एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना। इस बार कोई गलती नहीं करना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। पापा वो अंकल उसे क्यों डांट रहे हैं? बेटा वो उसके यहाँ पे काम करता है, उससे कोई गलती हुई होगी इसलिए डांट रहे हैं। तो हम इसे अपने घर ले चले, हम उसका क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे तो वो काम करता है, हमारे घर जाके क्या करेगा? ठीक है ना, लेके चलते हैं। एक फ्री फंड का हमारे बच्चों का मन बहल जाएगा और फ्री फंड का एक नौकर मिल जाएगा। कह तो तुम सही रही हो वैसे भी। चल मैनेजर से बात करते हैं। क्या हुआ मैनेजर साहब, इस बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक तो इससे बाल मजदूरी करा रहे हो, ऊपर से उसके साथ ऐसे व्यवहार। आपको पता नहीं बाल मजदूरी गैर कानूनी है? रुको अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं साहब नहीं, आप पुलिस को मत फोन कीजिएगा, आप जो कहेंगे मैं वही कर दूंगा। ठीक है ना मैनेजर साहब, हम इस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। क्यों जी, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ। अच्छा मैडम जी, आप जैसा कहें सब ठीक है। श्यामू, ओ श्यामू, चला तू इनके साथ चला जा, ये तेरा ख्याल रखेंगे। ठीक है साहब। हाय, कैसी हो सब? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? अरे शामू इधर आओ, इनसे मिलो। अरे ये कौन है? इसको हम रेस्टोरेंट से लाए हैं, ये हमारे घर का काम भी करता है और हमारे साथ खेलता भी है। अरे श्यामू, आप स्कूल नहीं जाते? नहीं, मुझे टाइम भी नहीं मिलता। मैं दिन भर झाड़ू, कटका, बर्तन, पोछा सब करता हूँ और वैसे भी मेरे साहब बोलते हैं कि मैं पढ़ के क्या करूँगा। अरे ऐसा नहीं है, मेरे पापा कहते हैं सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का समान अधिकार है और उनसे ये अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं। इसलिए
श्यामू को भी स्कूल जाना चाहिए। अगर इससे हम लोग घर पे काम कराएंगे, इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, और ऐसा करने से हमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे इस बारे में। मम्मी, मम्मी सुनो ना। क्या हुआ बेटा? कल से हम भी काम करने जाएंगे। काम? कैसा काम? जैसे शामू हमारे घर काम करता है ना, वैसे ही हम भी दूसरों के घर काम करेंगे। पागल हो गई हो? बच्चे काम नहीं करते। हाँ, तो श्यामू भी तो बच्चा है। आप भी तो उसे यहाँ झूठ बोल कर लाए हो। आप भी तो उससे सारा घर का काम करवाते हो। अगर उसके अपने माँ बाप होते तो शायद वो ऐसा काम कभी ना करता। और हमारे फ्रेंड ने हमें बताया है कि चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा क्राइम होता है, और हम दोनों आपको जेल जाते हुए नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने सही कहा बेटा, हमसे गलती हुई है, उसे हमें ही सुधारना होगा। मैं कल ही स्कूल जाके शामू को एडमिशन तुम दोनों के स्कूल में करा दूंगी, और फिर कल से तुम तीनों साथ में स्कूल जाना। हाँ जी, सही कह रहे हो। ये आज से मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। ये जैसा कि आपने देखा कि इन लड़कियों ने कैसे शामू की मदद करी, और अब वो चाइल्ड लेबर से आगे बढ़ सकता है और वो स्कूल जा सकता है, और इससे उसे कितनी खुशी मिली। ऐसे ही हम सब मिलकर चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। डन मैम। ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट वन? ये ग्रुप कौन सा था? मैम ग्रुप 3। ग्रुप 3 था। ओके, गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी नाइस। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, और ग्रुप 2 ने भी बहुत बहुत बेहतरीन काम किया। वेरी नाइस। चलिए ग्रुप 1 अब आ जाए। थैंक यू मैम। ग्रुप 1 चलिए। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
पर मेरे हम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो समाज में स्थित कुरीतियों को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि आज भी हमारे समाज में बाल मजदूरी और बाल शोषण मौजूद है। आज भी हम देखते हैं कि कई बच्चे चाय की दुकानों पर, सड़कों पर हमें बाल मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। तो आइए हम इस नाटक में देखते हैं कि क्या दर्शाया गया है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें वहाँ बिस्किट दूंगी, टॉफी दूंगी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊंगी और खूब अच्छा अच्छा खाने को दूंगी। चलोगे मेरे घर तुम लोग? तो ये हमें कपड़े और खाने को देगी, तो चले इसके साथ। चल हाँ हाँ चल चल, चलते हैं इनके साथ। चलो चलते हैं, चलो। बचपन सच में ही कितना खूबसूरत है। अभी देखा आपने कैसे ये कम्मो और छम्मो खेलते खेलते उन महिला के साथ उनके घर निकल लेती है।
तो क्या ये महिला सच में उन्हें चॉकलेट और नए कपड़े देंगी या एक दिखावा है? आइए देखते हैं। ये ले तू झाड़ू लगा, ये ले तू पोछा लगा। लगा रही हूँ। चल ये कुछ मस्ती करें। मस्ती तो करते हैं, पर करेंगे क्या? वो जो दो लड़कियां आई है ना अपने घर, क्या ख्याल है उन्हें परेशान करें? तो ठीक है, तो चल, तू बड़ी बहन को पकड़ और मैं छोटी बहन को पकड़ता हूँ। कब से खाली बैठे, इसने सारे काम कर लिए। क्यों ना मैं इसको अपने कपड़े दोबारा धोने बोलूं? इसको कैसे परेशान करूं? आइडिया। ये मेरे कपड़े दोबारा धोने दो। कमो सुन सुन, ये रहे मेरे कपड़े और उन्हें दोबारा धो। क्यों? क्योंकि ये ढंग से साफ नहीं धोएगी। मम्मी को बोलूं? नहीं ना, चल धो मेरे कपड़े। अब मजा आएगा। अरे यहाँ तो सारा पानी गिरा है, अब तो तुमको पोछा मारना पड़ेगा। अच्छे से नहीं किया तूने, सारा कचरा इधर ही पड़ा है, साफ कर इसको। इनसे मिले, ये है पूनम, उस घर की सबसे समझदार बेटी। बेचारों को पढ़ने लिखने की उम्र में कितना काम करना पड़ रहा है। ये लोग कमो और पढ़ाई। उस बच्ची के लिए उस महिला के मन में कोई भी दया भावना नहीं थी, बल्कि वो तो अपने घर में उन बच्चों से काम करवाने के लिए लेकर आई थी। हालांकि घर में आकर उनके बच्चों ने भी उन छोटी छोटी बच्चियों को भी परेशान किया। तो क्या हम इस समाज में क्या देखते हैं? एक तरफ एक बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख पा रहे हैं अच्छे से और उनको सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में ही इन कामों को करते हैं। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। हेलो आंटी, आप वही हो जो बच्चे को बचाते हो? हम ना एक आंटी ना हमें लेकर आई है। हम 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 द्वारका। वो एक बहुत बड़ा सा पार्क है और उसके सामने पीले रंग की बिल्डिंग है, पहले माले पे। आ जाओ आ जाओ। जा देख दरवाजे पे कौन आया है। आप कौन है और आप कहाँ से आई हैं? अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? नहीं है? चलो मैं तुम्हें एनजीओ लेकर चलती हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए खाना मिलेगा। तुम मेरे साथ चलोगे? ये आंटी हमें बाहर गार्डन में मिली। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से तुम्हारे कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी भी बच्चे को अपने घर नहीं लाऊंगी और घर लाके उनसे कभी काम नहीं कराऊंगी। आप इन बच्चों को ले जाइए और इनको पढ़ाइए लिखाइए, खूब अच्छा इंसान बनाइए। मुझे माफ कर दिए, मैं दोबारा से ये गलती कभी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, इस आंटी ने हमको हमारा थोड़ा सा लेकिन किया नहीं है और सुबह से हमने सारे काम करवाए, झाड़ू भी करवाया, पोछा भी करवाया और हमें कुछ पहनने के लिए भी नहीं किया और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है बच्चों से कैसे बता दिया जाता है? तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। चल चल कमो, हम ना इन आंटी के साथ चलते हैं जो एनजीओ वाली है। ये हमको खाना भी देंगी और ये हमको
ठीक है आंटी, चलो चलो आंटी। आखिरकार इन बच्चियों ने भी हिम्मत दिखाई और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा लिया। बच्चियां एनजीओ तो पहुंच गई। आइए अब देखते हैं इन बच्चों के साथ एनजीओ में क्या होता है। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एबीसी। तो तुम लोग तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। A for apple, B for boy, C for cat. चलो मेरे साथ बोलो, yes. Apple, boy, C for cat. तो देखा आपने, हमारा यह नाटक समाज की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। वही बच्चे छोटी छोटी मजदूरी और गरीबी के कारण काम करने को विवश हैं। कहीं लालच देकर, कहीं पैसा देकर, कहीं किसी और कारण से ये बच्चे आज भी बाल मजदूरी का शिकार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भारत में 7 से 17 साल के बच्चे आज भी बाल मजदूरी में गुम है। गरीबी और पैसे की लालच में वह स्कूल नहीं जाते और गरीबी के चक्र में फंस जाते। भारत सरकार ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आ रही है। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बनाया है। यदि आप भी ऐसे किसी बच्चे को घरों में काम करते हुए, दुकानों में काम करते हुए या इनका शोषण होते हुए देखें तो इस नंबर पर कॉल करें 1098 और इन बच्चों को सुरक्षित करें। धन्यवाद। इस ग्रुप में इतने से ही पार्टिसिपेंट, अच्छा ओके, मुझे लगा इतने से ही पार्टिसिपेंट्स थे। चलिए, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। कैन वी हैव द नेक्स्ट ग्रुप प्लीज क्विकली। बेटा ऑडियो नहीं अवेलेबल, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। अंजलि आवाज नहीं आ रही। अंजलि बैक कैमरा करके प्ले कर दे या तो। आवाज आ रही है अब? नहीं अंजलि कुछ कनेक्ट ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन्स कनेक्ट कर रखे हैं क्या? नहीं, मैंने हटा दिए। स्पीकर मोड पे कर दो। हाँ, स्पीकर पे कर दो। मेरा नाम अंजलि दास है। मैं सतम कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्र हूँ। आज मैं और मेरे साथी एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जो कि दहेज प्रथा पे आधारित है। आइए देखते हैं। कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज। अच्छा ठीक है, आराम से जाना, जल्दी आना, ठीक है? जल्दी पर क्यों? आज तो मैं लड़कियों नहीं देखने आ रहे हैं। मम्मी पर कुछ नहीं, चुपचाप टाइम से आ जाना। तुम बैठ के फोन पे गेम खेलते रहो, लाज लग रहा है यार। लेकिन तुम यहाँ फोन पे गेम खेलते रहोगे और मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं राहुल, आज मुझे आइए देखते हैं।
हमें देखने आ रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा प्यार हो, सिर्फ मेरा रहोगे, तुम्हारी शादी मेरे से ही होगी, तुम टेंशन मत लो। अरे राहुल आ गया तू? मम्मी हाँ बेटा बोलो। मम्मी क्या कर रहे हो? मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बोलो जल्दी बोलो, कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए यार मम्मी। तो क्या चाहिए तुझे? पता है मैंने एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। राहुल आप मेरा पापा को समझा देना, मेरा पापा को बता देना, ठीक है? देख लिया तू देखो चल, कहाँ जा रहा है? बात तू कर। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस जाने से पहले अपने लड़के की करतूत तो सुनते जाओ। फिर क्या कर दिया तुम्हारे छोरे ने? चक्कर में फंस गया है। कह रहा है उसी से शादी करूंगा। 2 रुपए की लड़की 2 कौड़ी की हमारी घर आएगी क्या वो? न दहेज ना लाएगी, न गाड़ी लाएगी, न बंगला लाएगी, न उसके कॉलेज की है क्या? उसके कॉलेज में पढ़ती है, दोनों के दोनों। मुंह काला करा रखा है हमारा। अरे भगवान, हमारे घर में नहीं आएगी ऐसी लड़की। अरे भगवान, आजकल ये बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल होगा आपके ऑफिस में, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। हमारे घर में तो आएगी खानदानी लड़की। तुम्हें कोई, तुम्हारे लौंडे को कोई लड़की मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे लौंडे में क्या कमी है? और वैसे भी प्यार का मामला है, अच्छा खासा मिल सकता है। नहीं मिलेगा, देख लेना। तो चलो उस लड़की के घर बात करने। एक बार मिल लाते हैं, फिर बात करते हैं भगवान तुम्हारी। और बताइए बहन जी, क्या हाल चाल है आपके? जी हम सब ठीक है, आप सब कैसे हैं? अरे चलते हैं जी। जी आपके लिए और आपकी बेटी के लिए। जी आप कुछ ले ही नहीं रहे हो? ना ना ना, बहुत है। अभी खाते जा रहे देखकर मेरा पेट भर गया। हमें बस अपनी बहू से मिला दीजिए। प्रिया, प्रिया बेटी देखो, उन्हें अरे लड़की तो हमें आपकी खूब घंटा से। जी हमें भी आपका लड़का बहुत अच्छा। अच्छा ये दोनों तो पहले से मिले होंगे ना, इनकी तो काफी गुफ्तगू चली है। हमें मोहल्ले को करना है, दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को अलग से टाइम दे दें। जाओ बच्चों, तुमको देखा आपके ससुराल निकम्मे, हमें फिर देखेगा। तो हमें तो आपको खूब पसंद आई है। आपको हमारा राहुल कैसा लगा? जी आपका राहुल भी बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं होगा, मैं ना कहती थी हमारा बेटा लाखों में एक। आप तो सही ही रहे। अरे नहीं बहन जी, आपकी खातिरदारी देखकर हमारा पेट भर गया। देखिए, आपको हमारा राहुल पसंद है, हमें आपकी बेटी पसंद है, तो क्यों ना शादी की बात भी आज ही कर दी जाए। जी आप बताइए आपकी क्या मांगे और शादी में क्या मांगे? नहीं बहन जी, हमारी कोई मांगे नहीं है। हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं, पर देखिए लड़का हमारा इकलौता है और बारात 1000 लोगों की आएगी। 1000 लोग? 1000 लोग तो बहुत कम है बहन जी। मेरी फूफा की लड़की की शादी में उन्होंने 2000 लोग बाराती बुलाए थे। प्यार खातिरदारी कर दी थी। मजा आया था वो देख के। तो खाना कितना अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया। आप तो जानते ही हैं कि रिया के पिताजी नहीं है, मैं इतना सारा अकेले कैसे करूंगी? बहन जी हमने सुना आपकी कुछ टहरी जमीन भी है, लेकिन वो मेरे राहुल के पापा सुना है हमने, लेकिन वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन होती किस लिए है? बच्चों के लिए तो होती है। हमारी जो है सब राहुल का तो है। आपका जो है बेटी का है, आपका कौन है आगे पीछे है? जी और मिलनी वगैरह के लिए क्या? कि मिलनी तो देखिए सादा नहीं, हर एक बाराती के लिए एक सोने की गिन्नी, मेरे लिए चढ़ा उठा और अपनी बेटी के लिए तो जो आप दें आपकी श्रद्धा, और गाड़ी घोड़ा तो आप देंगी। हाँ। गाड़ी घोड़ा भी चाहिए जी। ये बहन जी मैं तो सब कहाँ से करूंगी? जी बोलिए, कुछ आप ही बोलिए। देखिए बहन जी, आप ये सब हमें तो दे नहीं रही हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ये आप अपनी बेटी को ही दे रही हैं। अब आप बताइए गहने पहने का कौन? हम की आपकी बेटी। गाड़ी में घूमेगा कौन? हम की आपकी बेटी। और आप जो जमीन देंगी उस पर रहेगा कौन घर बना के? आप या हम या आपकी बेटी? आपकी बेटी रहेगी उस पे, और ये सब माँ बाप का हक होता है। समझ के दीजिए अपनी बेटी को। लेकिन मैं इतना नहीं कर पाऊंगी आपके पास। बहन जी सब करते हैं, हमारी बेटी होती तो क्या हम नहीं करते? और हम भी शादी में कमी थोड़ी छोड़ेंगे, आपकी लड़की हमारे घर आएगी। देखिए जितना आप हमें खुश रख पाएंगे उतना ही हम आपकी बेटी
बेटी को खुश रख पाएंगे। लेकिन आप ये सब समझे कि हम तो बहन जी समझ जाएंगे, पर ये जमाना कैसे समझेगा। देखिए, अगर जरा भी शादी में कुछ भी देरी वगैरह हुई, आजकल की जनरेशन को तो आप जानती ही हैं, कहीं भाग भूग ना गए, टूट भी जाते हैं ऊपर से तो ये तो, और ऊपर से देखो लड़के वालों की जल्दी। बस जितना मुझसे पहले तो नहीं कर सकते आपकी ना पते की बात। अब देखिए, हमें तो शादी हमें हमारे हिसाब की चाहिए। हमें आप पे भरोसा है, समझ लीजिए आप कर देंगी सब कुछ। चलो भगवान जी जी नमस्ते। ना जी नमस्ते, मिलते हैं फिर। तो आपने देखा कि किस तरीके से दहेज के बदले लड़कियों को बेचा जाता है हर परिवार में लगभग, और आप हर जगह ऐसे बैनर्स सड़कों पर लगे देखते होंगे, जगह जगह कॉलेजों में, बिल्डिंगों में, हर जगह ये बैनर्स आप लगे देखते होंगे। पर क्या फ़ायदा इनका? क्या लोगों की समझ में कुछ आता है इन्हें देख के? कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं। या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में हो रहा है। यार ये बहुत अचंभे की बात है कि राहुल की फैमिली ने दहेज नहीं दिया। हाँ, उन्होंने दहेज नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने कुछ गिफ्ट मांगे हैं, कार मांगी है ताकि हम ट्रैवल कर सके, कुछ कैश जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा, और कुछ ज़मीन मांगी है जहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। गिफ्ट्स मांगे? यार गिफ्ट्स मांगे नहीं जाते, गिफ्ट्स को अपने दिल से दिया जाता है, और ये एक तरीके का दहेज ही तो हुआ। अगर वो दबाव बना रहे हैं तुम पे चीज़ें मांगने का, क्या ये गलत नहीं है? अगर वो ये सब गिफ्ट्स मांग रहा है तो ये एक तरीके का दहेज तो मांगना होगा। गिफ्ट्स कभी किसी से मांगे नहीं जाते, कभी किसी पे दबाव नहीं बनाया जाता। पर उन्होंने कुछ भी डायरेक्टली नहीं मांगा है। ये नया तरीका है दहेज मांगने का। ये नया तरीका है कि आप बिना कहे कि हमें दहेज दे दो, आप कह रहे हो कि हमें गिफ्ट दे दो। और क्या राहुल की फैमिली को ये पता नहीं है कि तुम्हारी माँ अकेली है, वो इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगी? ये हम सोसाइटी में ये दोबारा नहीं होने दे सकते, ये खूब प्रथा है। तुम इस चीज़ के झांसे में उनके मत आओ। राहुल, मुझे नहीं लगता कि राहुल की फैमिली एक सही फैमिली है। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आगे जाके लड़कियाँ बहुत परेशान होती हैं, और कुछ लड़कियाँ अपनी जान भी गंवा देती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। Very nice girls. हेलो राहुल। हेलो, हाँ स्वीट हार्ट, बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मांग की है, ये जानते हुए भी कि मेरी माँ अकेली है और वो इतना सब कुछ नहीं दे सकती। क्या? तो क्या हो गया, मांग लिया तो यार, हमारे लिए ही तो मांग रहे हैं, तुम्हारी तो काम आएगा। लेकिन फ्यूचर की क्या बात है राहुल, फ्यूचर में तो हम दोनों कमाएंगे ना। तो कमाना तो अलग बात हो गई, अपने पास प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए यार। तुम्हें पता है मेरी माँ इतना नहीं कर पाएंगी। अरे क्या बात कर रही हो यार, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इतनी पुश्तैनी ज़मीन है, खानदानी दौलत है, वही दे दो, और क्या चाहिए। राहुल, इतने बड़े रूम में होने के बावजूद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दहेज प्रथा को सपोर्ट दोगे। मुझे नहीं लगता अभी हमारी शादी हो पाएगी। मुझे इस शादी में कोई विश्वास नहीं है। अरे सुनो तो, मैं नहीं हूँ कोई सामान, मत बेचो मुझको बाजार के दाम। स्टॉक मार्केट का मैं कोई मैदान नहीं, मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं। दहेज प्रथा में चली बेटी का यह आलाप है, क्या लड़की होना पाप है? Constitutional laws on dowry. Dowry Prohibition Act, Indian law, enacted on May 1st, 1961, intended to prevent the giving or receiving of a dowry. Under the Dowry Prohibition Act, dowry includes property, goods or money given by either party to the marriage, by the parents of either party, or by anyone else in connection with the marriage. The Indian criminal laws were comprehensively amended to include dowry as a punishable offence. Section 304B was added to the Indian Penal Code 1860 IPC, which made dowry death a specific offence punishable with a minimum sentence of imprisonment for 7 years and a maximum imprisonment for life. The offence under Section 304B called as the dowry death, whereas Section 498A called as husband or relative of husband of a woman, subjecting her to plurality Code of Criminal Procedure includes Section 174 and 176.
deals with investigation and inquiries into the causes of unnatural deaths by police and the magistrate. Thank you. More than 800 women die as a result of India's dowry system. A dowry puts a financial obligation for the bride's family. Including this, it has many ill effects. First is injustice towards girls. As a result, wife goes trauma and wish not to have a baby girl. Mental torture. Numerous women are undergoing harassment and physical abuse. Increasing divorces. Dowries make child marriage more likely. Globally, more than 700 million women alive today were married off when they were under 18. There are women's rights and economic justice movements in India that seek to abolish dowries. Thank you. Now I will discuss a real life story on dowry system. This story is of Naina, who lived in the resident of Guru Nanak colony, who got married to Sachin, a resident of Chandigarh. The in-laws started torturing Naina and often beat her. A few days ago, they had demanded dowry of 30,000 or a car, but they were not able to fulfill their demand. They had already given enough dowry when she got married, which leads her death. So they used to taunt her for her skin color and she used to cry over her phone. She often said that she is not able to live peacefully and she will end her life. It's because the torture that she took her life. Nana had killed herself following torture by her husband and in-laws. A local court has awarded 7-year jail into the man and his mother. Right, we are left with what's one. बंद कर दो वानी, बंद कर दो recording.